Hello everyone, so Techcentric Technologies is here at Indus Ras Expo 2026 जहां इनोवेशन और टेक्नोलॉजी एक ही रूफ के नीचे देखने को मिल रहा है। यहाँ दुनिया भर से डिफरेंट कंपनीज अपने रोबोटिक्स और एआई सॉल्यूशन शोकेस कर रही हैं और हम बात करेंगे डिफरेंट एग्जीबिटर से। लेट्स फाइंड आउट टुगेदर। So, hello Shamir, how are you doing today? Alhamdulillah, I'm good. So, can you tell us about your product? Okay, so I'm representative of Plateau Dynamics. We are a startup and based in NSTP NAS, and we are working on counter drone systems. और जिसमें हमारे पास यहाँ पे दो products हैं. This one is a spider drone that throws a net on the target, and that is the last line of defense. Counter drone system जो कि kinetic interception के principle पे work करता है और जाके उस target को disable कर देता है. All right. So, do you see this product like marketable? Yes, definitely. A lot of big sharks and big companies are currently working on it. रशिया यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट्स में देख चुके हैं कि यूक्रेन ने लार्ज स्केल पे इस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर किया और उसने अपने वॉरफेयर में इसको यूज भी किया है. And where do you see the robotic industry specifically in Pakistan in next 5 years? I think it is gonna be a lot more innovative in the next coming years because हम देखते हैं कि गवर्नमेंट और एजेंसीज के साथ साथ लोकल पब्लिक और जो हमारे पास जो लोग हैं उनका इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा इसकी तरफ मूव कर रहा है. इन यूनिवर्सिटीज वी सी के रिसर्च में काफ़ी ज़्यादा लोग इनोवेशन इसमें लेके आ रहे हैं एंड पीपल एट देयर ऑन लेवल इस चीज़ पे वर्क कर रहे हैं. हर कोई चाहता है कि वो ड्रोन बनाए और जो हमारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं दे आर हैविंग लैब्स एट देयर होम्स. आई नो लॉट ऑफ स्टूडेंट्स घर में लैब्स हैं और ड्रोन बना रहे हैं अपनी हॉबी के लिए. All right. And any comments on this event and how's your overall experience till now? इट इज़ द सेकेंड डे ऑफ द इवेंट एंड आई वुड से कि बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया गया. रैस इज अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे हमने आके एंटरप्रेन्योर्स, कंपनीज, बिग शार्क्स, इन्वेस्टर्स और उसके साथ साथ एजेंसीज के साथ भी इंटरेक्ट किया. उनके साथ हमने अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाया, उन्होंने हमें अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाया एंड वी गोना सून बी इन कोलैबोरेशन विद अ लॉट ऑफ कंपनीज. So, all right, Shamir. I guess we are good for today. Thank you so I much. wish you best of luck for Thank your you so product. Okay, so now we have students from Head Start School. So tell us about your project or product. What is it is about? So basically, these are FPV drones. These drones can be used in many things. We use it for racing competitions and entertainment. There are four motors and ESC and a camera. It's basically a camera armed aircraft, and now Bari is going to tell us about how they work. Okay, so basically, the ESC and FC they're connected. So the ESC gives power to the FC, so it can tell the motors to spin when they're told to by the controller. So basically, when the controller throttle stick goes up, the motor is gonna start spinning and the drone's gonna start hovering. The more power you give it, like the more throttle you give it, it's gonna start going up. Okay. So what's your good name? Urva Bilal. Urra Bilal. So I get to know that you're the youngest drone pilot. Yes, I'm the youngest female FPV drone pilot of Pakistan. I've been flying drones for over 1 year. First, we start with simulator, then we move on to LOS. LOS is line of sight, where there's no camera ahead, and we can fly it in the level of our eye. Then we have FPV drones. FPV drones means first person view. We even have goggles for that, so that wherever the drone goes, we can see it through our goggles. Okay. So I want to know what inspired you the most. I love astronomy. I want to become an aerospace engineer. So I went to NASA Space Center Houston all by myself without my parents. I was really interested in engineer after seeing engineers building stuff and spaceships actually flying. So I wanted to give this a try, and it actually worked out for me, and I want to become an aerospace engineer. Okay, so we have Faisal from Beacon House International College. So Faisal, tell me about your project, what it is about. तो ये मेरा प्रोजेक्ट है जो मैंने मतलब जैसे ना एज FYP बनाया था. तो इसमें ये था कि हम लोग ने एक मॉकअप बनाया हुआ था जो यहाँ पे रखा हुआ था, लेकिन मसला ये है कि यहाँ पे काफ़ी कंस्ट्रेंट प्लेस है, तो यहाँ पे हम लोग डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर सकते. तो इसमें ये था कि हमारे पास किचन एक बेस है, ठीक है, तो किचन बेस के ऊपर ये प्लेस होता है. तो वहाँ पे आप लोग मतलब जैसे ना टेबल पे जाके बैठते हैं
टेबल पे जाके आप बटन प्रेस करेंगे, इसके अंदर RF मॉड्यूल लगा हुआ है जो बटन इसके साथ कनेक्टेड है। तो बटन के ऊपर आप प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ये आपकी तरफ नेविगेट करके आएगा। तो नेविगेट करके आएगा, आपको मेन्यू शो करेगा। आप मेन्यू के अंदर आप सेलेक्ट करेंगी जो चीज़ें आपको पसंद होंगी या मेन्यू में जो अवेलेबल होगा, तो वो आप ओके जब प्रेस करेंगी तो ये ऑटोमेटिकली वापस नेविगेट करके जाएगा और आपको मतलब जैसे ना ये आपका ऑर्डर पिकअप करेगा। ऑर्डर पिकअप करके आपको आके सर्व करेगा, आपको बिल बता देगा कि इसमें बिल कितना आया। आपको क्यों लगा कि आपको या हमें इस प्रोजेक्ट की या इस प्रोडक्ट की ज़रूरत है? तो मैं मतलब जैसे ना कैफेटेरिया में जाता हूँ तो कैफेटेरिया में जाके मतलब मैं बैठा हुआ हूँ, कोई मतलब वेटर आके मुझसे बात नहीं कर रहा या वेटर को मैं पसंद नहीं हूँ, तो उसमें ये है कि मतलब जैसे ना वेटर वो उसमें ये है कि ये मतलब प्रेफरेंस बेस पे आता है। तो आप मतलब आपने पहले बटन प्रेस किया हुआ है तो आपको ये फर्स्ट आके सर्व करेगा। कैफेटेरिया वेटर होते हैं अक्सर वो मतलब आपकी तरफ देखते भी नहीं है और मतलब जैसे ना वहाँ पे चले जाते हैं। तो इसमें ये है कि मतलब आपने प्रेस किया तो ये आपको ये आके सर्व करेगा पहले। So, Assalamu alaikum, Tayyab. How are you? Walaikum salam. So, Tayyab, can you tell us about your product first of all? So we are manufacturer of unmanned systems. We are building different type of unmanned systems. For example, this is unmanned ground vehicle. This ground vehicle can be used for the surveillance if you use camera on this turret. It can also be mounted with machine gun or rifle for the combat operations. And then the main item is this robotic arm. This robotic arm is 7 degrees of freedom, means it can it just not grabs the item, but it can also twist the wrist towards the side of cabinets. It can pull the items from the cabinets as well. So you can mount this robotic arm on this vehicle and carry the explosive items like the bombs or the IEDs, or it can also carry the radioactive material. All right. So our main focus is to save the people's life by reducing their interaction with the hazardous environments. So, Assalamu alaikum. Here we are today with Sir Aurangzeb. Assalamu alaikum, sir. How are you? So, sir, please give us a brief introduction about yourself first, and do let us know about the event and any upcoming thing that government is launching in the AI and robotic industry. जी थैंक यू फॉर हैविंग मी। मेरा नाम औरंगजेब राव है और मैं MP हूँ यहाँ पे इग्नाइट में, जो कि एवेल्युएशन करते हैं हम प्रोजेक्ट्स की। अपकमिंग के बारे में आपने पूछा, मैं पहले इवेंट के बारे में आपको बता देता हूँ। ये इवेंट हमारा फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड जो कि मिनिस्ट्री ऑफ IT की तरफ से है, जो कि जिसको इग्नाइट जो है वो कर रहा है। इग्नाइट इज़ अ कंपनी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ IT। इट्स अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड 2 days इवेंट है। इसके अंदर हमारे जो ऑटोनोमस व्हीकल, रोबोटिक्स और ड्रोन के हवाले से हम चाह रहे हैं कि जो जिस डेवलपमेंट है उसको उसका फ़रोग़ किया जाए इस इवेंट के हवाले से। अब मैं आपको अपकमिंग के बारे में आपको बता देता हूँ कि हमारे जैसे कि PM साहब ने कल अनाउंसमेंट की है, हमारे 2 प्रोग्राम फंडिंग के हवाले से आ रहे हैं। नंबर 1 इज़ स्पार्क एंड सेकेंड वन इज़ एलिवेट। जो स्पार्क है उसके अंदर जो फंडिंग है वो आपके जिन में कुछ नॉवल आइडिया है जो कि कमर्शलाइज हो सकता है, नॉवल नहीं भी है, कमर्शियल आप कर सकते हैं। तो उस आइडिया को अगर आपने प्रोटोटाइप में लेके जाना है उसके लिए फंडिंग आपको चाहिए, वो हम स्पार्क के थ्रू आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। सेकंड जो ऑप्शन है वो एलिवेट की। एलिवेट में आपके पास यू हैव अ प्रोटोटाइप और उसको आप कमर्शियल स्केल के ऊपर आप करना चाह रहे हैं, तो उसकी भी एक फंडिंग है। तो ये आफ्टर कमिंग कपल ऑफ वीक्स में आप देखेंगे इसकी जो सोशल मीडिया और जो हमारा नॉर्मल मीडिया उसके ऊपर इसकी एडवर्टाइजमेंट, और हमारी इग्नाइट की वेबसाइट है उसके ऊपर भी इसकी ऐड आना शुरू हो जाएंगी और उसका एक डेडिकेट पोर्टल होगा जिसके बाद आप अप्लाई वगैरह कर सकते हैं। और इसी के साथ हमारा रात एक्सपो 2026 का टूर यहीं पे ख़त्म होता है। आज हमने देखा कि पाकिस्तान में कैसे रोबोटिक्स, AI और इनोवेशन टेक के फ्यूचर को शेप कर रही है। हम डिफरेंट इंटरनेशनल गेस्ट और एग्जीबिटर से मिले जिन्होंने हमें अपने ग्राउंड ब्रेकिंग आइडियाज़ के बारे में बताया। इस तरह के इवेंट ना सिर्फ नई प्रोडक्ट बल्कि ये भी दिखाते हैं कि वेयर वी आर हेडिंग इन फ्यूचर। सो दिस इज़ मी अब्दुल्ला फ्रॉम टेक्जिनिटी टेक्नोलॉजीज। Until next time, stay curious, stay informed. Allah Hafiz.